کہ ہم تین تلاوتیں آپ سنتے ہیں. پہلی تلاوت جو ہے قرآن عہد نامے سے ہے، اس کے بعد زبور جماعتی جواب ہے، پھر دوسری تلاوت اور پھر انجیل مقدس. تو یہ ایک سمپل سا پیٹرن ہے جس پر ہم کلام مقدس کی تلاوتیں سنتے ہیں. یاد رہے کہ پہلی تلاوت کے بعد جماعتی زبور ہے، اور یہ جماعتی زبور یہ بہت خاص حصہ ہے عبادت کا. جب ہم پہلی تلاوت سنتے ہیں تو ہم خداوند کی بات سنتے ہیں جو شخصی طور پر ہر ایک سے مخاطب ہے، ہم سے گفتگو کرتا ہے، اور پھر ہم اس کلام کو، اس کے کلام کو سن کر پھر ہم جواب دیتے ہیں. تو زبور جو ہے یہ جماعت کا ہمارا شخصی اور جماعتی جواب ہے خداوند کو. تو وہ ہم زبور میں سے لیتے ہیں، اور ہر روز وہ مختلف ہوتا ہے، تلاوتوں کے مناسبت سے ہوتا ہے، اور پھر جماعتی طور پر ہم خداوند کو جواب دیتے ہیں. اس لیے ہم نے جب جماعتی جواب دہرانا ہے تو ہم نے بہت توجہ سے سننا ہے، اور پھر اونچی آواز سے ہم نے پورے دل کے ساتھ ہم نے جماعتی جواب دینا ہے، کیونکہ یہ ہمارا جواب ہے خداوند کو. جو کلام سنا ہے اس کلام کا ہم جواب دیتے ہیں کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، ہم کلام کو سنتے ہیں. تو عزیز بھائی اور بہنوں، اس کے بعد جو ہے ہم دوسری تلاوت جو نئے عہد نامے سے ہے، اور جو رسولوں کے اعمال یا مکاشفہ اور پھر خطوط سے لی جاتی ہے. اس کے بعد انجیل مقدس، اور اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے اپنے لفظ ہم سنیں گے، خداوند یسوع مسیح کی اپنی آواز سنیں گے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے جماعت کھڑی ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ اب خداوند یسوع مسیح جو ہے ہم سے کلام کرنے کو ہے. خداوند یسوع مسیح ہم سے خود کلام کرنے کو ہے. انجیل مقدس کے لیے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم لبان چڑھاتے ہیں تاکہ پوری جماعت کو پاک کر لیا جائے کہ خداوند اب اپنا کلام ہم سے کرنے کو ہے، مسیح خداوند گفتگو کرنے کو ہے. تو ہم جماعتی طور پر کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں ہے، جو خداوند ہے بڑا ہے، ہم اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہم کلام کو سنجیدگی کے ساتھ سنتے ہیں. کلام مقدس کے، انجیل مقدس کے اختتام پر تو کاہن جو ہے ایک مرتبہ انجیل مقدس کو بوسہ دیتے ہیں، لیکن اس کے آغاز میں بھی جماعت کے ساتھ مل کر تو یہ عمل دہرایا جاتا ہے. ہم سارے جب کاہن دعوت دیتا ہے کہ ہم انجیل مقدس کے لیے کھڑے ہوں، تو اپنے جو ہے وہ اپنے ماتھے پر، اپنے ہونٹوں پر اور اپنے دل پر صلیب کا نشان کرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا میرے ذہن کو، میرے دماغ کو، میرے دل کو، میری زبان کو پاک کرے تاکہ ہم یسوع مسیح کی بات کو لائق طور پر سن سکیں. تو جب ہم اپنے ماتھے پر صلیب کا نشان کرتے ہیں تو ہم اپنی سوچ کو، اپنے دماغ کو ہم اسے پاک کرتے ہیں، وہ پاک کیا جاتا ہے، ہمارے ہونٹ پاک کیے جاتے ہیں، ہمارا دل پاک ہوتا ہے، تاکہ پڑھنے والا بھی پاکیزگی سے پڑھے اور پھر سننے والے بھی اسے پاکیزگی کی
हालत में सुने, क्योंकि खुदावन खुद हमसे कलाम करने को है। मसीह खुदावन हमसे कलाम करने को है। मत सिर्फ ऐसे ही कह दें कि नहीं अंजील की तलावत हो रही है, अंजील की तलावत जरूर हो रही है, लेकिन मसीह खुदावन उसमें आपसे मुखातिब है। मसीह खुदावन खुद आपसे बात कर रहा है। आप देख लें कि जमायत को कितना खुश हो जाना चाहिए जिस तरह से खुदावन जब अपनी एलानिया जिंदगी मुनादी के वक्त में अपने शागिर्दों के साथ शहर, गांव, पहाड़ों पर, मैदानों में, झील के किनारे और खामोशी में और सब सवेरे, दोपहर को, शाम को वो गुफ्तगू किया करता था, बिल्कुल उसी तरह से खुदावन यीशु मसीह हमसे हम कलाम होता है, हमसे गुफ्तगू करता है, हमारे गिरजे घर में आकर हमसे बात करता है। कितनी ज्यादा हमें उस वक्त खुशी होनी चाहिए, कितनी संजीदगी होनी चाहिए, किस हैरत और ताज्जुब से हमें वो कलाम सुनना चाहिए कि मसीह खुदावन हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, मसीह खुदावन हमसे बोल रहे हैं। अंजील मुकद्दस के इख्तिताम पर तो हमें एक बार फिर ये जो है वो याद दिलाया जाता है कि मसीह का, लेकिन उससे पहले जब हम शुरू करते हैं तो वो हिस्सा भी बहुत खास है। हमें बड़ी तवज्जो से इसमें कि तलाकों से पहले ये नहीं कहा जाता, लेकिन अंजील से पहले तो काहिन आकर आपसे यूं मुखातिब होता है, खुदावंद आपके साथ हो, और जमायत जवाब देती है आपके साथ भी हो। यानी याद दिलाया जाता है जमायती तौर पर कि खुदावंद खुदा यहाँ मौजूद है, हमारे साथ है। और फिर उसके बाद अंजील का ऐलान किया जाता है, अंजील मुकद्दस बामुताबिक लूका, और फिर उसका हवाला, और जमायत जो है जवाब देती है, आए खुदावंद तेरी तमजीद हो। इसी तरह से अंजील के इख्तिताम पर अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं, और जमायत जवाब देती है, आए मसीह तेरी सताइश हो। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ, खुदावंद यीशु मसीह उसकी आवाज जब हम सुनते हैं वो हमें पाक कर देता है, उसके लफ्जों से हम पाक होते हैं, उसके कहने से पाक होते हैं। जिस तरह से उसने अपने कहने से सब कुछ खलक किया, सब कुछ उसके कहने से बना, इसी तरह से आज भी उसके लफ्ज हमें पाक करते हैं, हमें गुनाहों से, हमारी खताओं से हमें मुआफ़ी मिलती है जब हम ईमान के साथ उसका कलाम सुनते हैं। इसलिए जब हम अंजील के लिए खड़े हों पुख्ता ईमान रखकर कि मसीह खुदावंद हमसे हम कलाम है, और हम उसका कलाम सुनकर पाक होते हैं। अज़ीज़ भाई और बहनों, काहिन या डीकन अंजील मुकद्दस को चूमता है और फिर कलाम को बंद करके हम देखते हैं कि अपनी जगह पर रखा जाता है। और इसका मतलब क्या है? जब काहिन कलाम को गुस्सा देता है, कलाम को चूमता है, इसका मतलब ये है कि खुदावंद का ये कलाम पाक है। उसके एहतराम में काहिन अपना सर झुकाता है और कलाम को चूमता है, पाक है। ये सुकून यहाँ है। अल्तार को चूमता है काहिन और फिर कलाम को चूमता है। याद रखना हमें कि इबादत में काहिन 3 मरतबा ये अमल करता है। इबादत के आगाज में जब वो अल्तार को चूमता है, फिर अंजील के इख्तिताम पर अंजील को, और फिर इबादत के इख्तिताम पर ज़ाहिर करता है कि कितना ये पाक है अल्तार और कलाम। तो ये यूक्रिस्ट का अल्तार, ये कलाम
जिस भाई और बहनों, उसके बाद हम जमायत बैठती है और फिर जो है काहिन या खादिम वो वाज शुरू करते हैं। अब ये जो कलाम मुक़द्दस के बाद का हिस्सा है, जिसे हम आम लफ्ज़ों में पैगाम कहते हैं, वाज कहते हैं, ये क्या है कि काहिन फिर खुदा के इस भेदों को अपने लोगों के सामने बयान करता है। तो ऐसे जैसे उसको आसान तोड़कर, कलाम को तोड़ता है अपने लोगों के लिए, ताकि खुदा के भेदों को समझ सकें। कलाम में तो खुदावंद अपने आप को ज़ाहिर करता है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना, ये यूं समझ ले आसान लफ्ज़ों में, ये खुदा का ज़ाहिर होना है। कलाम में खुदावंद अपने लोगों पर अपने आप को ज़ाहिर करता है, जमायत पर ज़ाहिर करता है, खुदावंद हमसे बात करता है। हम पैगाम में खुदावंद यीशु मसीह की उन बातों पर ध्यान करते हैं जो उसने कलाम मुक़द्दस में बयान की हैं। काहिन अपने वास के दौरान ये कोशिश करता है कि वो उन बातों को बयान करे, उन कामों को बयान करे जो खुदावंद ने उस रोज़ की तलाकों में खुदा के कामों को खुदा ने ज़ाहिर किया है, तो उनको बयान करे। तो ये जो वास है, ये काहिन की कोई नसीहत नहीं है। काहिन कोशिश करता है कि जमायत की तवज्जो इस तरफ दिला सके कि खुदावंद क्या कहता है, खुदावंद क्या कहता है। काहिन कोशिश करता है कि ये याद दिलाए कि खुदावंद क्या कर रहा है। ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पर क्योंकि खुदा हमसे गुफ्तगू करता है, तो काहिन की कोशिश होती है कि वो मोमिनीन की तवज्जो उस तरफ दिला दे कि खुदावंद अब हमें क्या कह रहा है और खुदावंद खुदा क्या कर रहा है। तो हमने खुदावंद कलाम में हमने खुदावंद के भेदों पर, खुदावंद के कलाम कामों पर हमने तवज्जो करनी है। अज़ीज़ों, उसके बाद हम अपने आप को तैयार करते हैं ताकि हम अपने ईमान का इकरार करें। तो निकाया का अकीदा है और रसूलों का अकीदा है, हम वो पढ़ते हैं जो है वो लतूरिया की मुनासबत के हवाले से। ये हमारे ईमान का भेद है। हम अपने ईमान का इकरार करते हैं और ये बहुत खूबसूरत है। अगर आप देख लें कि जब हम इस पर ध्यान करके हम तवज्जो के साथ इसे पढ़ें, तो ये हमें हमारे ईमान को जाहिर करता है और हम अपने ईमान का एलानिया तौर पर इसमें इकरार करते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ। हर एक शख्सी तौर पर ये शुरू करता है कि मैं ईमान रखता हूँ एक ही खुदा का बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का बनाने वाला है, और एक ही खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा है। हम इसमें कलीसिया के सारे ईमान को बयान कर देते हैं।
उस पर गौर कर लेते हैं। मसीह खुदावंद की पैदाइश, मसीह खुदावंद के दुख उठाने, मसीह खुदावंद का मरना, मसीह खुदावंद का जी उठना, फिर कलीसिया का ईमान, कि हम कलीसिया पर ईमान रखते हैं, हम गुनाहों की माफ़ी पर यकीन और ईमान रखते हैं, बपतिस्मे पर हम ईमान रखते हैं, मुर्दों की क़यामत और आने वाली ज़िंदगी पर हम अपने ईमान का इकरार करते हैं। इसके बाद अजीज भाई और बहनों, हम मोमिन की दुआएं खुदावंद के हुजूर में पेश करने के वक्त में दाखिल होते हैं। मौका मिलता है कि मोमिन अब जो है वो अपनी दुआएं खुदावंद के हुजूर में पेश करें। तो जिन्हें हम मुनाजात कहते हैं, वो बहुत अहम हिस्सा है कि इसके बाद जो है खुदावंद के कलाम को सुनने के बाद तो जो हमसे बात करता है, अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम अपने ईमान का उस पर इकरार करें, और ईमान का इकरार हम जो है उसकी तारीफ और तमजीद करते हुए करते हैं, और फिर जो है ये जो हमारे ईमान का जो ये सिलसिला है या ईमान का जो इकरार है, वो हम जारी रखते हैं जब हम इसी ईमान में सारी जमायत की दुआएं खुदावंद के हुजूर में पेश करते हैं। जमायत खामोशी में दुआ करती है, और जो कारी है जमायत में रहनुमाई कर रहा है, वो आकर तो जमायत की तरफ से मुनाजाते जमायत की जो है बुलंद आवाज के साथ वो पेश करता है। इस वक्त में हम भी अपनी दुआ खुदावंद को पेश कर रहे होते हैं, और हम इसमें जो दुआ करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी कि हमें पता हो। तो सबसे पहले हम अपने पापाए आज़म के लिए दुआ करते हैं, पोप फ्रांसिस के लिए, फिर अपने बिशप जी के लिए दुआ करते हैं, फिर कलीसिया के लिए, कलीसिया की जो मुकामी कलीसिया है उसकी ज़रूरतों के लिए दुआ की जाती है, जिसमें हम अपने गरीब भाइयों और बहनों को, ज़रूरतमंदों को दुखी और तकलीफ में जो है उनको याद करते, बीमारों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, दुनिया की अमन और सलामती के लिए हम दुआ करते हैं। इस भाई और बहनों, इस मुनाजात जो हम खुदावंद के हुजूर में पेश करते हैं, तो इसके साथ ही जो कलाम का हिस्सा है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कलाम की लतूरिया में खुदावंद हमसे हम कलाम होता है, हम खुदावंद खुदा को हकीकी तौर पर देखते हैं, हमारे दरमियान मौजूद होता है, अपने आप को जाहिर करता है, अपने कामों को जाहिर करता है, और इस तरह से वो कलीसिया को जिंदगी बख्शता है। आज हमारा मसीही तालीम का हिस्सा लतूरिया कलाम पर मबनी था। आने वाले सेशन में हम यूक्रिस्ट के हिस्से में दाखिल होंगे, और उससे मुताल्लिक हम खुदावंद से ही सीखेंगे कि किस तरह से वो हमें मौका देता है कि अब जब हमने खुदावंद से बात कर ली, खुदावंद ने हमसे बात कर ली, तो अक़दस यूक्रिस्ट में जो हिस्सा शुरू करेंगे, एक बार फिर खुदावंद उस बड़े हिस्से में हमें दावत देगा। नाउ वी गिव टू गॉड, हम खुदा को अपना नजराना पेश करेंगे। आने वाले हफ्ते में हम अपनी मसीही तालीम को इसी जगह से फिर जारी रखेंगे।